Okay, first of all, good morning to all of you. Welcome in the second lecture, in the second part of the dielectric polarization part 2. Okay. So in the last lecture we have discussed the what are dielectrics, what are different types of dielectrics, polar and non-polar dielectrics. Okay. What are polar? Which have a center of gravity of positive and negative charge do not coincide with each other, and the net dipole moment of the sample is zero even in the absence of external applied electric field. इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का होता है बट नेट सैंपल का क्या होता है जीरो. और पोलर में क्या होता है? सेकंड इज द पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विद ईच अदर एंड दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ induced dipole moment. And in the next we have discussed the polarization, dielectric polarization based upon the polar dielectrics. और चौथे केस में हमने क्या किया था? We have discussed the dielectric polarization for the non-polar dielectric, and we have derived the beautiful relation that is K is equal to 1 plus chi e. K is called dielectric constant, chi is called electric susceptibility. So the question can come derive a relation between electric susceptibility and dielectric constant. So you have to derive this. Okay, ये बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 और 6 मार्क का. Okay. In this lecture we will discuss the what are different types of polarization. Okay. So see, first is called electronic polarization. First is called electronic. तो see its name itself suggests इसमें क्या होगा? Electronic polarization में क्या होगा? See क्या होगा? Electron क्या होगा? There will be the charges get polarized. जैसे एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल डिस्प्लेस वन साइड एंड न्यूक्लियस विल डिस्प्लेस on the other side. So this phenomenon is called electronic polarization. Let us write electronic polarization PE results from electronic polarization PE results from displacement of the center of negatively charged electron, displacement of center of negatively charged electron cloud relative to the positive nucleus of an atom, by n. कौन करेगा? कौन चार्जों को डिस्प्लेस करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव को कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड. जब तक टीचर नहीं बोलता आप काम नहीं ना करते हो? नहीं करते. तो टीचर के क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कर रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द वर्क ऑफ द टीचर इज टू अलाइन ऑल द डिफरेंट डाइपोल्स. जितने भी सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ऑल द डिफरेंट डाइपोल्स अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. For example, monatomic gases exhibit this type of polarization. Monatomic gas, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, एक एटम वाली. Monatomic gas exhibit this type of polarization. ठीक है. तो इसका क्या डायग्राम होगा? देखो ऐसा डायग्राम होगा. जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब ऐसा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब ऐसा है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया तब क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा, आंधे जैसे. ये सेंटर पे है, ये डॉट, तो ये किस तरह हो जाएगा? इस तरह से. ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से ये सेंटर क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया. तो वी कैन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ओके, बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. And this kind of polarization is called electronic polarization, symbol by PE. Okay. The second point is ionic polarization. ये तो बनाने की जरूरत नहीं है. Ionic means points. Ionic means points. So it means this will connect with ions. Points means cation and anion. Points means positive and negative. Positive is called cation and negative is called anion. So ion means positive, cation and negative, which is called तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगी? पोलराइजेशन होगी. तो प्लीज राइट
it will occur in ionic material. सेकंड में लिखिए it will occur in ionic material when an electric field is applied to ionic material. When an electric field is applied to ionic material. तो क्या होगा इससे? Positive and negative will displace in positive cation and negative anion will displace in same direction or opposite direction? Opposite direction. Cation पॉजिटिव की तरफ जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ. ठीक है, will displace in opposite direction and results into a net electric dipole moment. ठीक है, ये वाली और ये वाली दोनों वाली, ये दोनों क्या होती है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट. टेम्परेचर से इन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता. सो प्लीज राइट नोट, यू कैन राइट अ नोट इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन बोथ 1 and 2. नोट लिखिए 1 and 2 आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. 1 and 2 इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन एंड आयनिक पोलराइजेशन आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ठीक है, let us come to the third, orientation polarization, that we have just discussed in the last lecture. वो तो हमने डिस्कस किया है ना, orientation polarization we have discussed in the last lecture. किया था कि नहीं किया था? याद आया ये वाला? तो different dipoles होते हैं, ऐसे वाला when we apply electric field what will happen? क्या होगा? All the dipoles will align in the direction of the electric field and a torque will act on each dipole. ठीक है, तो वो टॉर्क अलग पे क्या होगी, अलग अलग होगी बिकॉज़ थीटा अलग है. ठीक है, तो ओरिएंटेशन ये हमने कर रखी है. इसको और भी बोलते हैं डाइपोल पोलराइजेशन. क्या बोलते हैं? डाइपोल पोलराइजेशन. दैट इज सिंबलाइज्ड एज P नॉट. दैट इज सिंबलाइज्ड एज तो ये आप खुद से लिख सकते हो ना. लेट अस कम टू द फोर्थ पॉइंट, इंटरफेशियल. फोर्थ पॉइंट इज एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इंटरफेशियल ऑफ स्पेस चार्ज पोलराइजेशन. Please write it occurs due to accumulation of charges. It occurs due to accumulation. Accumulation means present होना. Accumulate मतलब deposit हो जाना. It occurs due to accumulation of charges या deposit of charges present at the interfaces. Present at the interfaces in a multi-phase dielectric sample. Second point, such a polarization is possible when one of the phases present has the higher resistivity than the other. When one of the phases has the higher resistivity than the other. ठीक है, अगर उसमें डिफरेंट फेज है, एक फेज की रेजिस्टिविटी दूसरे से ज्यादा है, तो ये इस इंटरफेशियल और स्पेस चार्ज पोलराइजेशन हो जाती है. अब चारों को कंबाइन कीजिए. कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो नेट पोलराइजेशन सैंपल के अंदर कितनी आ गई? डाइलेक्ट्रिक सैंपल के अंदर कितनी आ गई? चारों का सम. So we'll add 1, 2, 3 and 4. So please write the net polarization in the sample. Capital P is equal to the sum of PE plus PI plus PO plus PS. So this is the all about the dielectric polarization. Any doubt in this part? अभी लंबा था, ठीक है, because जो पहला पार्ट था, the first part is very important because we have to compile all the things in a one lecture so that कि उससे कनेक्टिविटी बनी रहे. ठीक है, अगले में करते तो आपको समझ ना आता बिकॉज काफी क्वेश्चन थे उसमें. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. एनी डाउट? तो लेट अस डू न्यूमेरिकल ऑन. अच्छा, इसके बाद आता है एक डिस्प्लेसमेंट करंट. क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगले लेक्चर में हम करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस. क्या करेंगे? मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है. तो सी वी हैव अ
हमारे पास जो करंट आता है उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। एक होता है कंडक्शन करंट, क्या होता है कंडक्शन करंट। यू नो व्हाट इज कंडक्शन करंट? Yes, sir. क्या होता है? Due to conduction electron. कंडक्शन करंट होता है Due to free electron. या ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू बेसिकली कंडक्शन करंट अराइजेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ड्यू टू द मूविंग चार्जेस, ड्यू टू द मूविंग चार्जेस। ये करंट आता है ड्यू टू मूविंग चार्जेस। ठीक है। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इन 1861। ठीक है। मैक्सवेल ने ये डिस्प्लेसमेंट करंट को निकाला था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1861 में निकाला था। उसने ये बताया कि उसने ये बताया कि we have a conduction current just due to the flow of a moving charge, just due to the flow of a moving charges. And he also discovered another kind of current which is called a displacement current, So what is the cause of displacement current? ये कहाँ से आया? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ये कहाँ से आया? उसने बताया कि देखिए करंट कब आता है? करंट अराइजेस व्हेन द चार्जेस विल फ्लो, ड्यू टू द मूविंग चार्ज, So till now, Maxwell से पहले, before Maxwell, people only know that the current arises just due to the flow of a moving charges. तो जब Maxwell आया, तो Maxwell discovered the another kind of current which is called a displacement current. So he basically discovered that कि time rate of change of electric field, कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो क्या चेंज होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी। क्या चेंज होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसने ये बताया टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल कॉजेस चेंज इन फ्लक्स। तो उसने ये बताया कि टाइम रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेस अ न्यू काइंड ऑफ करंट व्हिच इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट करंट। उसने क्या बताया कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करते हैं तो हमारे पास एक नया करंट आता है which is called a displacement current. So till now we have a two kind of current. One is called conduction current which occurs just because of a flow of moving charges, and second kind of the current which is discovered by the scientist Maxwell, James Clerk Maxwell in 1861. He discovered that when we change the electric field with respect to time, or we can say the time rate of the time varying electric field causes a new kind of current which is called a displacement current. और ये पक्का आएगा, it will definitely asked what are ferrites, what are dielectric polarization, what is displacement current. It will definitely asked by the examiner. It will most important. What do you mean by displacement current? So displacement current just arises due to the time rate of change of a electric field. If we change the electric field, it means we are changing the electric flux. अगर हम electric field को change कर रहे हैं, if we change the electric field means we are changing the electric flux. So it means changing electric flux, or we can say changing electric field can causes a new kind of current which is called a displacement current. So please write two lines. Displacement current can be defined as current which comes into play. Displacement current can be defined as a current which comes into play in the region in which रेड पेन से लिखिए, in which electric field and electric flux are changing with respect to time. In which electric field and electric flux are changing with respect to time. This is the first definition. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी वालों को बता रहा हूं आसानी से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? कौन सा करंट पैदा होगा? डिस्प्लेसमेंट। किसका पैदा होगा? कौन सा करंट पैदा होगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये करंट कहां से आया है? इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करने में। अगर ये कहां से आया? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां से आया? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने हमें एक नया करंट दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या नया करंट दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो कंडक्शन करंट था ये कहां से आ रहा था? ये चार्जेस के फ्लो होने के कारण।
तो इसका मतलब ये चार्जेस के कारण नहीं आता, ये किसके कारण आता है? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करने का। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सेकंड डेफिनेशन लिखिए। इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कॉमा, ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू टाइम वेरिंग और टाइम चेंजिंग, ऐसे भी लिख सकते हो, ड्यू टू टाइम वेरिंग और टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉमा, देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स which constitute displacement current, which constitute displacement current। ठीक है, आसान है। थर्ड डेफिनेशन लिखिए, कोई भी आसान लगे। displacement current is the time rate of change of electric field। ये सबसे आसान है। थर्ड डेफिनेशन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन। displacement, please write section Amanda, please write, displacement current is the time rate of change of electric field। कहां से आता है ये? करली E by करली T से आता है। कहां से आता है? करली E by करली T से। अगर E टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ही आएगा, ठीक है। अगर E कांस्टेंट है तो क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट? नो। डिस्प्लेसमेंट करंट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which acts like a current in the circuit, which acts like a current in the circuit, but this does not consist of moving charges, but this does not consist of a moving charges। तो ये इसका बना ID इक्वल होता है ID डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू ID इज इक्वल टू E नॉट into d by dt of phi e। ये phi e क्या है भाई? ये phi e क्या है? phi e क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। phi e क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके साथ चेंज हो रही है? टाइम के साथ। चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो, टाइम के साथ दोनों क्या है? सेम चीज है। दोनों क्या है? सेम। इसका मतलब अगर मैं इसको नटशेल में कहूं, अगर मैं इसको नटशेल में कहूं तो नोड लिखिए, नोड लिखिए करली E by करली D, करली E by करली D बोल दीजिए टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। और दूसरा क्या देता है? चाहे फ्लक्स बोल दीजिए, चाहे क्या बोल दीजिए? फ्लक्स। क्या बोल दीजिए? फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, दिस इज कॉल्ड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज कॉल्ड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोथ आर सेम, both are same thing and both are causes a current which is called a displacement current, and this current is a independent of the moving charges। moving charges की वजह से नहीं आता, ये किसकी वजह से आता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए, अगर E कांस्टेंट हो जाए, क्या डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा? नो। व्हाई? बिकॉज़ dE by dt क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। हमें समझ आया? स्पेशल केस, इफ E इज कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों? जीरो। तो करली E by करली D क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। नो डिस्प्लेसमेंट करंट, नो डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, और जब वो होगा तब देगा, जब नहीं होगा तो नहीं देगा। ठीक है, अगर करली में करली D जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा। अगर ये नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तब डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। ओके, हाउ मच टाइम लेफ्ट? हो गया? पढ़ा भी 10 मिनट्स। चलो लास्ट दो है, दो फॉर्मूलेज हैं, वो मैंने आपको बताने हैं। सिंपल फॉर्मूलेज है। प्लीज राइट। वन इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम,
हाँ जी, वन इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम। सिंपल फॉर्मूले है स्टोक्स थ्योरम। अनदर है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस, जिसको जीडी थ्योरम भी बोल देते हैं, जीडी थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस भी। ठीक है, पहले करेंगे स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम क्या होती है? E dot dl is equal to surface open surface integral of del cross E dot ds del cross E dot ds vector और गॉस डाइवर्जेंस होती है। See, this is called a 1-2 formula। यहाँ पे 1 इंटीग्रल है, यहाँ पे 2 है, इसको बोलते हैं 2-3 फॉर्मूला। 2-3 फॉर्मूला। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 इंटीग्रल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। यहाँ पे वॉल्यूम होगा, यहाँ पे सरफेस होगा, सरफेस क्या होगा? क्लोज। ये होगा E डॉट ds इज इक्वल टू del डॉट E यस, ठीक है। हाँ जी, स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? अगर आपने इसको मेमोराइज करना है तो इसको मेमोराइज करने का तरीका ये है, स्टोक्स थ्योरम इज कॉल्ड अ 1-2 फॉर्मूला। इट इज कॉल्ड अ 1-2 फॉर्मूला। ये मैंने अपना बनाया है 1-2 फॉर्मूला। सी 1-2 फॉर्मूला क्यों? सी यहाँ पे एक इंटीग्रल आ रहा है, यहाँ पे 2 इंटीग्रल आ रहे हैं। 1-2 और गॉस डाइवर्जेंस क्या है? 2-3 फॉर्मूला, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। So this is called a line integral. This is called a line integral. और पाथ क्या हमारा? Close. This small circle represents that path is a लवकुश. This small circle represents path is closed. Path is a closed. So line integral of electric field over a closed path is equal to surface integral of curl of electric field over that surface. ये क्या बन जाएगा? This is a surface integral. This is a surface integral. और सरफेस क्या है? ओपन है या क्लोज है? क्लोज। दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E dot ds is equal to वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द। तो ये दोनों मैक्सवेल इक्वेशंस में बहुत यूज होते हैं, स्टोक्स थ्योरम। तो कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, वी फाइंड स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन 2 मार्क्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोक्स थ्योरम एंड व्हाट डू यू मीन बाय गॉस डाइवर्जेंस theorem in 2 marks. So any doubt from this part? E dot dl is equal to del cross E dot ds. ये होता है E dot ds, surface integral of closed surface integral of volume integral is equal to volume integral of divergence of that vector field over the volume. तो यहाँ पे हमारा surface क्या है? Closed. Surface क्या है? Any doubt? Any doubt? हाँ जी, international. Are you getting all the points? Benedict, Joseph, हिंदी वालों को समझ आया सबको? Okay, thank you so much. Thank you.